अस्सलाम वालेकुम आदाब। वन टीवी के उर्दू खबरनामे में आप सबों का खैर मकदम है। मैं शहबाज। आगे बढ़ने से पहले देखेंगे हेडलाइन। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का सहाफ़ियों पर इल्ज़ाम, कुछ सहाफ़ी सियासी कारकुनों के तौर पर करते हैं काम। राहुल गांधी का अमेरिका दौरा, टेक्सास में हिंदुस्तान की सियासत और भारत जोड़ों पर तबादले ख्याल। महबूबा मुफ्ती की इंतखाबी मुहिम में बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर कड़ी तनकीद, अवामी रद्द अमल का दावा। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने रविंद्र भारती में जवाहरलाल नेहरू हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी की तकरीब में सहाफ़ियों पर संगीन इल्ज़ामात आयद किए हैं। उन्होंने कहा कि बाद सहाफ़ियों का रवैया सियासी जमातों के कारकुनों जैसा है और उन्हें अपने हुदूद से तजावुज़ नहीं करना चाहिए। इस मौके पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने जर्नलिस्ट सोसाइटी के अहदेदारों को पेट बशीराबाद में 35 एकड़ अराज़ी के अलॉटमेंट के दस्तावेजात भी फराहम किए हैं। ఈ మార్పును మీరు గుర్తించండి నేను భావిస్తున్నా। కానీ మార్పు సమాజానికి నష్టాన్ని మా కష్టాన్ని తెచ్చేదిగా ఉండకూడదు। కొన్ని రాజకీయ పార్టీలకు సంబంధించిన పాత్రికేయ మిత్రులు కొంతమంది మంత్రుల కార్యాలయాలు లేకపోతే ఇతర దగ్గర ఒకేసారిగా చాలా మంది వచ్చి అక్కడ కూర్చొని అక్కడ ఉన్న జరగని వాటిని జరిగినట్టుగానో లేకపోతే జరిగితే బాగుంటుందని కొంతమందిని పాసులు ఇచ్చి తీసుకొచ్చి లోపలికి తీసుకొచ్చి అనవసరమైన రాద్ధాంతాలను సృష్టించే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు। మరి ఇట్లాంటి వాటిని ఎట్లా నియంత్రించాలనో మీరే నిర్ణయించి మీరే వాటిని ఏదో ఒక రకంగా ఒక కొలిక్కి పట్టుకురావాలి। అసెంబ్లీలో పాసులు ఇచ్చినా కూడా అవసరానికి మించి వాళ్ళే వచ్చి ప్రెస్ మీట్ పెడితే కూడా గుర్తింపు పొందిన జర్నలిస్టులకు కుర్చీ దొరకదు। వాడు యూట్యూబ్ అంటాడు, వాడు ఆ ట్యూబ్ అంటాడు, వాడు యూట్యూబ్ అంటాడు, వాడు వచ్చి మొదటి సీట్లలో కూర్చుంటాడు। వాళ్ళు ఏం అడుగుతారో వాళ్ళకి మేము ఏం చెప్పాలో మాకు అర్థం కాదు। ఇది మాకే కాదు మీకు కూడా నాకు తెలిసి ఒకప్పుడు నేను చాలామంది జర్నలిస్ట్ మిత్రులు నాకు ఉన్నారు। సీనియర్ జర్నలిస్ట్ రాగానే లేచి కూర్చొచ్చి వీళ్ళు వెనక్కి పోయి కూర్చునేటోళ్ళు। మేము పత్రికా సమావేశం పెడితే కూడా ఒకవేళ డెస్క్ ఇన్ఛార్జ్లో లేకపోతే మీ దాంట్లో సీనియర్ జర్నలిస్టులు వస్తే వేరే సంస్థకు సంబంధించిన జర్నలిస్ట్ వస్తే కూడా లేచి జూనియర్స్ లేచి ముందు వరుస వాళ్ళకి ఇచ్చి వీళ్ళు వెనక్కి పోయేటోళ్ళు। ఇప్పుడు విపరీతం ఎట్లయిపోయిందని అంటే అసలు కంటే కొసరోళ్ళది ఎక్కువైపోయింది। ఎవరిది ఏ ట్యూబో తెలుస్తలేదు మాకు। ఇక ఆ ట్యూబ్లో ఎక్కడికంటే అక్కడికి వెళ్ళిపోయి ఏది పడితే అది మాట్లాడితే అక్కడ ఉన్న ప్రజలు ఏమన్నా అంటే చూసిరా జర్నలిస్టుల మీద దాడి అని। జర్నలిస్ట్ అనే పదానికి డెఫినేషన్ ఏందో మీరు డిసైడ్ చేయండి। మేము ఎవరిని జర్నలిస్ట్గా చూడాలో మీరు చెప్పండి। ఎవడు దోస్తే వాడు ట్యూబ్ పెట్టుకొని ఆ ట్యూబ్లో పెట్టుకొని వాడు మెడలో పట్టేసుకొని మెడలో ఇది కట్టుకొని వాడు నేను ట్యూబ్కో జర్నలిస్ట్ అని బయలుదేరితే వాళ్ళు వివరించే విధానాన్ని బట్టి ప్రజలు వివరిస్తారు। ఏది పడుతుంది మధ్యలోనే అడ్డం దొడ్డం మాట్లాడి ఏదైనా ఏమన్నా అంటే చూసిరా జర్నలిస్టుల మీద। సో ఈ విధానానికి ఎక్కడో ఒక దగ్గర పులి స్టాప్ పెట్టాలి। దీన్ని ఆలోచన చేయాల్సింది మీరే। ఎందుకంటే ఇంతకంటే పెద్ద సందర్భం నాకు దొరకదు మీకు ప్రభుత్వం వైపు నుంచి కానీ ప్రజాప్రతినిధిగా మేము ఎదుర్కొంటున్న సమస్యల్ని మీ దృష్టికి తీసుకురావడానికి ఇంతకంటే మంచి అకేషన్ ఏమి ఉండదని నేను భావిస్తున్నా। అక్రిడేషన్ కార్డుల గురించి పెద్దలు శ్రీనివాసరెడ్డి గారు చెప్పారు। ఇద్దరు శ్రీనివాసరెడ్డి స్క్వేర్ ఈరోజు మీ సమస్యల్ని మీ ముందర పెట్టారు। నిజమైన జర్నలిస్టును ఒక్కరిని కూడా అగౌరవపరచాలన్న ఆలోచన కానీ వాళ్ళకి అక్రిడేషన్ కార్డులు కానీ ఆరోగ్య భద్రత కార్డు కానీ ఇంటి పట్టాల విషయంలో కానీ మీకు ఎలాంటి నష్టం జరగకుండా చూసే బాధ్యత ఈ ప్రభుత్వం అని చెప్పి నేను మీకు మాట ఇస్తున్నా। కానీ ఎట్ ద సేమ్ టైం ఈ ప్రభుత్వం ఎదుర్కొంటున్న అనవసరమైన రాద్ధాంతాలను నియంత్రించాల్సిన బాధ్యత మీ మీద ఉన్నది। మీరు డిఫైన్ చేయండి ఎవరిని జర్నలిస్ట్గా మేము గుర్తించాలి, ఆ జర్నలిస్ట్కి ఉన్న ఎథికల్ లైన్ ఏంది, ఏ హద్దు దాటకుండా జర్నలిస్టు ఉండాలి, ఆ జర్నలిస్టు హద్దు దాటి వివరించినప్పుడు ఎదురుగున్నోడు క్షణికావేశానికి లోనైనప్పుడు జరిగే పరిస్థితులు ఎట్లా ఉంటాయి, వీటన్నిటిని కూడా మనము ఆలోచన చేసి ఒక పరిష్కారం చూపించుకోవాల్సిన బాధ్యత మన మీద ఉన్నది। నేను ఇంకొక మాట కూడా చెప్పదలుచుకున్నా। ఈరోజు సిద్ధాంతాలు రాసుకోవాల్సిన పత్రికలు ఇష్టారాజ్యంగా
అసలు ఏ భాష వాడాలనో జర్నలిస్టులకు కూడా కొన్ని నిబంధనలు ఉన్నాయి కదా. అసెంబ్లీలో మేము ఏదైనా మాట్లాడితే రికార్డుల నుంచి తొలగించడమనో లేకపోతే ఈ భాషకు పద్ధతి లేదనో మనం పార్లమెంటరీ వ్యవస్థలో మనం అనుకుంటున్నాం కదా. మరి పత్రికలకు జర్నలిస్టులకు ఏ భాష రాయాలా, ఎలాంటి భాష వాడాలి, ఏ పదప్రయోగం హోదాని బట్టి రేవంత్ రెడ్డి మీకు నచ్చకపోవచ్చు యాజ్ ఎ ఇండివిజువల్, కానీ రేవంత్ రెడ్డి ఈజ్ తెలంగాణ చీఫ్ మినిస్టర్. తెలంగాణ చీఫ్ మినిస్టర్ అనేది ఒక గౌరవప్రదమైన హోదా, ఒక జర్నలిస్ట్ అనేది ఒక గౌరవప్రదమైన హోదా. వ్యక్తితో నీకు నచ్చవచ్చు నచ్చకపోవచ్చు, ఆ హోదా మనమందరు ప్రజలందరూ కలిసి ఇస్తే వచ్చిన హోదా. ఆ హోదాని గౌరవించాల్సిన బాధ్యత ఆ పత్రికలకు కానీ ఆ పత్రిక యజమానుల ముసుగుల్లో ఉన్న రాజకీయ పార్టీ నాయకులకు కానీ ఉండదా? వాళ్ళకి లేనప్పుడు మేమెందుకు పాటించాలా అనేది నా ప్రశ్న. వాళ్ళు ఆ బాధ్యతను మరిచి అసభ్యంగా వ్యవహరించి అసందర్భమైన అంశాలను ప్రస్తావిస్తే న్యాచురల్గా రియాక్షన్ ఉంటుంది. ఆ రియాక్షన్ని మొత్తం జర్నలిస్టులకు మీరు ఆపాదించుకోకండి. దయచేసి వేదిక మీద నుంచి మీడియా మిత్రులకు నా విజ్ఞప్తి ఒక్కటే, ప్రజల కోసం ప్రజల మధ్యలో ఉండి ప్రజా సమస్యల్ని వెలికితీసే జర్నలిస్టులు ఒక వర్గం అయితే, కేవలం రాజకీయ పార్టీ యజమానిని రక్షించడానికి ఆ యజమానికి మొత్తం వ్యవస్థను అప్పచెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్న వాళ్ళు ఇంకొక కోవా. ఈ రెండింటిని మీరు విడదీయండి. ఈ రెండింటిని కలగాపులగం చేయడం ద్వారా నిజమైన జర్నలిస్టుకు నష్టం జరుగుద్ది. ఆ నష్టం జరగకుండా ఉండడానికి అవసరమైన ప్రణాళికలు మీరు సిద్ధం చేయండి అని చెప్పి నా వైపు నుంచి విజ్ఞప్తి. అసెంబ్లీలోకైనా లేకపోతే సెక్రటేరియట్లోకైనా ప్రభుత్వ కార్యాలయాల్లోకైనా మిమ్మల్ని అనుమతించడానికి ఎలాంటి అభ్యంతరం లేదు. దానికి సరైన కార్డు తీసుకోండి, సరైన విధానాన్ని తీసుకొని రండి. నేను మా మంత్రి గారికి సూచన చేస్తున్నా. నెక్స్ట్ స్టెప్ అదే, సెక్రటేరియట్కి ఎవరు రావాలి, ఎవరికి. हैदराबाद में इन्हदामी कार्रवाइयों का सिलसिला बढ़ता जा रहा है, जहां हालिया मादापुर टूना तालाब FTL एरिया में गरीब और बेबस अफराद के घरों को बगैर किसी पेशगी इत्तला या मुआवजे के मुनहदिम कर दिया गया है। इस कार्रवाई के नतीजे में मुतअद्दिद खानदान शदीद बारिश में सड़कों पर हैं। मुतासिरीन ऐसे लोग हैं जिन्होंने बरसों की मेहनत से अपने घर बनाए हैं, मगर अब उन्हें बारिश में अपने बच्चों, बूढ़ों और खवातीन के साथ पर्दों और चादरों के सहारे सर छुपाने पर मजबूर होना पड़ रहा है। निदाम के दौरान ओहदेदारों ने मुतासिरीन को सामान समेटने का भी मौका नहीं दिया, जिससे उनकी मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया है। हैदराबाद में एक सनसनीखेज वाकया सामने आया है, जहां भैंसा की कम उम्र लड़की को इंस्टाग्राम पर दोस्ती करने वाले नौजवान ने नारायणगुरा के ओयो होटल के कमरे में 20 दिन तक गैर कानूनी तौर पर कैद रखा। तफसीलात के मुताबिक लड़की ने इंस्टाग्राम पर एक नौजवान से दोस्ती की थी, जिसने उसे हैदराबाद आने पर उकसाया। लड़की के शहर पहुंचने पर नौजवान ने उसे नारायणगुरा के होटल में रखा और 20 दिन तक उसे कैद में रखा, जिस दौरान उसे बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी गई। ये वाकया उस वक्त सामने आया जब लड़की ने अपने वालिदैन को व्हाट्सएप पर अपनी मौजूदगी लोकेशन शेयर की। वालिदैन ने फौरी पुलिस और शी टीम से रब्ता किया, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लड़की को होटल से कमरे से बाजियाब कराया और नौजवान को गिरफ्तार कर लिया गया। तेलंगाना के आदिलाबाद में पेश आए एक शदीद सड़क हादसे में 6 अफराद शदीद जख्मी हो गए। इत्तला मिलते ही पुलिस ने फौरी मौके पर पहुंच गई और मकामी अफराद की मदद से जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस ने इस हादसे के सिलसिले में एक मामला दर्ज कर लिया है और तहकीकात शुरू कर दी है। हादसे का वीडियो सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहा है। सामे पवन स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर वो ड्राइवर है अरे भवन चला सर किस्मत
वो जो दगरवात बोलता है रोड वाले ಅದು ಬೆಲೂನ್ ಪೇಶಿ ಅಂತ ಬೇಕು ನೀವು ಮತ್ತೆ ಆಯ್ತು ಬಸ್ ಬೋಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ नाइन मैम ఈడ కలిగి ఈడ లోపల పడ్డది. ఇది మన బ్రిడ్జే, और ये तंगन मत कर बोल किसी पर सामे मैं इनको नहीं को बता दे पड़ पुलिस कर जब इक्कन के पता है चले मत इतने पवन स्ट्रक्चर पता तो स्पीड दे वो स्पीड हां पता कर पाए ना वो ड्राइवर ಮೂಡಿ ಗೋಲ್ ಕಾಟಿ ಬೆಲೆ ನೋಟ ಮೋಟ ಅದು ಇದನ್ನು ಕಾಕು अरे पवन चले सर वो किस्मत है पूरा है किस्मत है तो बिल्कुल फोड़ा लाते बोर्ड लाते तो ना मानते वो जो दगरवात बोलता है रोड वाले ಅದು ಬೆಲೂನ್ ಪೇಶಿ ಅಂತ ಬೇಕು ನೀವು ಮತ್ತೆ ಆಯ್ತು ಬಸ್ ಬೋಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ खलीज बंगाल में हवा के कम दबाव का मरकज शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है, जिसके बाद शुमाली आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में शिद्दत बारिश और सैलाब का असर जारी है। आंध्र प्रदेश के साहिली इलाके जैसे विशाखापट्टनम, विजयनगरम, श्रीकाकुलम और गोदावरी अजला में 200 मिलीलीटर तक बारिश हुई है, जिसकी वजह से इन इलाकों में कई मकामात पर बाढ़ आ गया है और सैलाब का खतरा बढ़ गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक हवा के कम दबाव का मरकज शुमाल की तरफ से पेशकदमी कर रहा है, जिससे आंध्र प्रदेश के शुमाली इलाके और तेलंगाना के शुमाली मशरक़ी इलाके शदीद बारिश से मुतासिर हो सकते हैं। 11 सितंबर तक शदीद बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है और शहरी इलाकों में पानी जमा होने का खदशा है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी और शिवसेना शिंदे ने जुनूबी मुंबई के मुस्लिम अक्सरियत इलाकों में असम्बली इंतखाबात के लिए अपनी सरगर्मियां तेज कर दी है। बैकल्ला हल्के के एमएलए ने गुज़िश्ता शब मदीनापुरम, बैकल्ला और नागपारा इलाकों में खवातीन में बुर्क़े तकसीम किए और यकीन दिलाया कि खवातीन की सहूलत के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। ये इक़दाम खास अहमियत का हामिल है क्योंकि बीजेपी और शिवसेना पर अक्सर मुसलमानों के रहन सहन, खाने पीने और लिबास पर एतराज़ात करने का इल्ज़ाम लगता है और बुर्क़े पर भी हमेशा उंगली उठाई जाती है। हाल ही में बीजेपी के रुकने असम्बली नीतीश राणा के मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी और वजीर आला शिंदे के गुस्ताखे रसूल रामगिर की हिमायत में शदीद नाराजगी पैदा की है। ऐसे में शिवसेना शिंदे का ये कदम इंतखाबात के तनाजुर में खास अहमियत रखता है। कांग्रेस के साबिक सदर और लोकसभा में कायदे हज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने अपने 3 रोज़ा अमरीकी दौरे पर टेक्सास पहुंच चुके हैं और यहां उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के तलबा से हिंदुस्तान की सियासत, मैशत और भारत जोड़ो यात्रा पर तफसील से तबादला ख्याल किया। राहुल गांधी ने इस मौके पर कहा कि हिंदुस्तानी सियासत में नफरत का माहौल है, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के जरिए मोहब्बत और भाईचारगी की सियासत की शुरुआत हो गई है। उन्होंने मजीद कहा कि RSS का मानना है कि हिंदुस्तान एक नजरिया है, जबकि उनका मानना है कि हिंदुस्तान नजरियों की कसरत है। राहुल गांधी ने कहा, हर एक को ख्वाब देखने और इसमें हिस्सा लेने
देने के लिए इजाजत होनी चाहिए, बगैर किसी जात, जुबान, मजहब, रवायत या तारीख की तफरीक के। राहुल गांधी ने 2024 के लोकसभा इंतखाबात का भी जिक्र किया और कहा कि ये एक लड़ाई है जिसमें हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों ने वाज़ेह तौर पर महसूस किया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आइन पर हमला कर रहे हैं। उन्होंने इस बात को भी उजागर किया कि आइन जदीद हिंदुस्तान की बुनियाद है और लोगों ने इस बात को इंतखाब में साफ तौर पर समझा है। Battle that is being fought in India. The RSS believes that India is one idea. And we believe that India is a multiplicity of ideas. And we believe, by the way, very much like the United States, we believe that everybody should be allowed to participate. We believe that everybody should be allowed to dream. Everybody should be given space, regardless of their caste, language, religion, tradition, history. This is the fight. And the fight was crystallized in the election, when millions of people in India clearly understood that the Prime Minister of India is attacking the Constitution of India. Because what I am saying to you, union of states, respect to languages, respect to religions, respect to traditions, respect to castes, this is all in the Constitution. Every single word that I have said to you is in the Constitution. The foundation of modern India is the Constitution. And what people understood in the election clearly, and I saw it happening, when I used to raise the Constitution like this, people understood what I was saying. They were saying that the BJP is attacking our tradition, attacking our language, attacking our states, attacking our histories. And most importantly, what they understood was that anybody who is attacking the Constitution of India is also attacking our religious tradition. Right? And that is why in my first speech in Parliament, you must have noticed, when I described Abhay Mudra, the fact that this is a symbol of fearlessness and it is present in every single Indian religion. You can look, you go on the internet and you can see every single Indian religion. Guru Nanak Ji holds his hand like this. Shiva holds his hand like this. Every single Indian religion, the hand is a symbol of fearlessness. And when I was saying this, the BJP could not stand it. They don't understand. And we are going to make them understand. You see, and the other thing that happened that was very beautiful, that in fact I was amazed that it happened so quickly, was that fear of the BJP vanished, disappeared, gone. And we saw that immediately, within minutes of the election result, nobody in India was scared of the BJP or the Prime Minister of India. So these are huge achievements, not of Rahul Gandhi or the Congress party. We are peripheral. These are huge achievements of the people of India who realized, of democracy, of the people of India who realized that we are not going to accept an attack on our constitution. We are not going to accept an attack on our religion. We are not going to accept an attack. हरियाणा असेंबली इंतखाबात के लिए सियासी सरगर्मियां तेज हो गई है और कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की फेहरिस्त भी जारी कर दी है। इस फेहरिस्त में पहलवान विनेश फोगाट को जुलाना से टिकट दिया गया है, जो इस वक्त हरियाणा में मरकजी तवज्जो बनी हुई है। विनेश फोगाट ने अपने इंतखाबी मुहिम का आगाज करते हुए अपने ससुराल बख्ता खेरा में एक अवामी जलसे से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने लोकसभा में अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी की तारीफ करते हुए कहा कि वो उनकी बहुत इज्जत करती हैं। फोगाट का कहना था कि मैंने गुज़िश्ता 2-3 वर्षों में देखा है कि राहुल गांधी सड़कों पर
निकले हुए हैं और हर आदमी से बात करते हैं और आवाम के दर्द को समझने की कोशिश कर रहे हैं। उनका ये अवामी सुलूक काबिल तारीफ है, जिससे मेरी नजर में उनकी इज्जत काफी बढ़ गई है। प्रियंका दी ने एक बात बोली थी मुझे कि हिम्मत नहीं हारना है। जो जवाब आप रेसलिंग मैच से दे सकते हो ऐसे लोगों को, उससे ज्यादा कहीं नहीं मिल सकता है। उस दिन मैंने फैसला किया था कि नहीं, कुश्ती तो दोबारा फिर से करनी पड़ेगी। हिम्मत आप लोगों ने दिखाई, आप लोगों ने सम्मान दिया, आप लोगों ने हौसला दिया, तो उस मंच तक मैं गई। हर एक सवाल का मैंने जवाब देने की कोशिश की। सिर्फ एक कुश्ती के उसमें थोड़ी सी चूक रह गई, कमी रह गई। उसकी कमी तो मैं कभी नहीं भर सकती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे जो आने वाले बहन भाई हैं वो उस कमी को पूरा करें, और जब वो कमी को पूरा करेंगे तो मेरे लिए मेरे ओलंपिक मेडल से भी बड़ी खुशी की बात होगी। से इतना जबरदस्त काफिले से सम्मान दिया, उसकी अरेणी बता। मैं कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी जी को बहुत एडमायर करती हूँ, क्योंकि 2-3 साल से मैं देख रही हूँ कि वो सड़कों पर निकले हुए हैं। हर एक जनमानुष के साथ में वो जा रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, उनके दर्द को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मल्लिकार्जुन खड़गे सर का मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। जब हम उनसे मिले थे, उन्होंने एक बात बोली थी कि हम तो बूढ़े हो गए हैं, अब आप लोगों को संभालनी है हमारी ये जिम्मेदारी। तो मैं उनको आश्वासन देती हूँ, उनको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि जो भी जिम्मेदारी पार्टी देगी, जो भी जिम्मेदारी आप लोग दोगे, उसके मान सम्मान को पूरी ताकत के साथ में, पूरी मेहनत के साथ में निभाएंगे, उसमें कोई कमी नहीं आने देंगे। और आपका मान सम्मान सबसे पहले होगा हमेशा। ये मैं एक आश्वासन आपको देना चाहती हूँ। जिंदगी में बहुत सारे मोड़ आते हैं, राजनीति में तो बहुत ही ज्यादा आते हैं, लेकिन कभी अगर आपके मान सम्मान पे बात आएगी तो आपकी बेटी आपके साथ खड़ी मिलेगी आपको। मैं श्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, जो हमारे मुख्यमंत्री रहे हैं पूर्व में, उन्होंने खेलों का बहुत ज्यादा सम्मान किया है। 10 साल से हम खिलाड़ियों को पता है कि हमने कैसे हरियाणा में खेल को घटते हुए देखा है। मैं बड़े भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा बहुत ही एक नेक दिल इंसान है, क्योंकि जब भी कुछ बात होती है तो ऐसे हम बातचीत करते हैं कि लगता ही नहीं है कि वो कोई इतने बड़े पद पे बैठे हैं, या क्योंकि पॉलिटिशियन लोग इतना जल्दी आपसे रूबरू नहीं होते हैं, वो आप पे ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन भाई साहब ने हमेशा आशीर्वाद दिया है, प्यार दिया है, और जंतर मंतर पे जो उन्होंने, जैसे हम लड़ाई लड़ रहे थे तो वो भी हमारे साथ में लड़ाई लड़ रहे थे। किसी भी चीज की जरूरत या किसी भी चीज, जब भी हम मेंटली फील करते थे कि नहीं अभी लो टाइम है, तो भाई साहब ने हमेशा समझाया कि नहीं विनेश, हार नहीं माननी है, बस कुश्ती लड़ना है, कुश्ती नहीं छोड़ना है कैसे भी। तो बहुत सारे लोगों का आशीर्वाद और प्यार रहा है। देश ने बहुत कुछ दिया है मुझे, और कुश्ती ने भी बहुत कुछ दिया है। आज मैं जो कुछ भी हूँ कुश्ती की वजह से हूँ। मैं चाहती हूँ कि कुश्ती तो बढ़े ही बढ़े इस हमारे जिंद के एरिया में, लेकिन हर एक वो स्पोर्ट्स बढ़े, और जब भी ओलंपिक्स में नाम आए तो जिंद की धरती का ऐसा नाम आए कि यहाँ से जो एथलीट निकले हैं वो कहीं नहीं है पूरे देश में। मैं ऐसा एक सपना संजोना चाहती हूँ, और आपके आशीर्वाद से, आपके विश्वास से बस ये चाहती हूँ कि आप अपनी बेटियों को जरूर आगे बढ़ाएं। जो भी बेटी छोटा सपना देखती है उसको बड़ा करने में आपका सबसे अहम योगदान रहेगा उसमें। तो जितनी भी मेरी बहनें हैं, छोटी छोटी बच्चियां हैं, मुझे बहुत प्राउड फील होगा अगर आप उसको स्पोर्ट्स में या किसी भी फील्ड में डालोगे। बस आप उसका सपोर्ट करो, उसको आशीर्वाद दो। हम जैसे खिलाड़ी जो बैठे हैं किसी भी चीज में, चाहे वो बातचीत करने से ही कई बार हौसला बढ़ जाता है बच्चों का, किसी भी चीज की जरूरत हो हम पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती ने अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर शदीद तनकीद की है। मुफ्ती ने कहा है कि लोगों में बीजेपी के खिलाफ गुस्सा है और वो इसका जवाब वोट के जरिए देंगी। उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर के अवाम नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी मायूस हो चुके हैं। अनंतनाग में एक अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा, मुफ्ती मोहम्मद सईद के विजन को अवाम ने समझ लिया है। पीडीपी की कारकर्दगी सबके सामने है। हमने जो रफ्तार से काम किया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने 40 साल दौर के इक़्तिदार में भी नहीं कर पाई। वो लोग समझ चुके हैं कि जो कार्रवाई, जो कारकर्दगी पीडीपी की बहुत कम अरसे में रही, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की 40-45 साल में भी रही। पीडीपी ने साउथ कश्मीर को लेके अगर आप देखेंगे, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, एम्स, मेडिकल कॉलेजेस, सड़कों का जाल बिछाया, खासकर लोगों को जो उसको जुल्म था, सितम था, पोटा का, टास्क फोर्स का, इरवान का, आर्मी का, उससे नजात दिला दिया लोगों को। इसलिए लोग समझते हैं अगर आज वोट की इज्जत है, वो इज्जत इसलिए कि पीडीपी सामने खड़ी है। अगर पीडीपी सामने खड़ी नहीं होती, अगर मुफ्ती साहब ने पीडीपी नहीं बनाई होती,
तो आज भी नेशनल कॉन्फ्रेंस वो तानाशाही के माहौल में इस वक्त भी काम कर रही होती। जी, तो बीजेपी लगातार निशाना बना रही है यहाँ की इलाकाई पार्टियों को और 3 खादानी राज को लेकर जो है काफी बयान दे रही है, तो कैसे रिएक्ट करेंगे क्या आप? करेंगे? फ्रस्ट्रेटेड है, उनको पता है जो उन्होंने जम्मू कश्मीर में 5 साल पहले किए हैं। लोग बहुत गुस्से में हैं, लोग उनसे बहुत नाराज हैं और लोग जो है बैलेट का इस्तेमाल करके उनको जवाब देना चाहते हैं, इसलिए वो कुछ भी कह सकते हैं। लगातार अलायंस की जानिब से इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि जो अलायंस पार्टियां नहीं बन चुकी है वो बराह रास्त बीजेपी को फायदा पहुंचा रही है। नहीं, वो तो आपने सुना ही होगा कि रविंद्र राणा साहब ने क्या कहा कि जिस वक्त दिल्ली से बीजेपी के लोग हमारे दरवाजे पे खड़े थे 3 महीने की सरकार बनाओ, तो दिल्ली ओलंपिक खिलाड़ी बजरंग पुनिया, जिन्होंने हाल ही में कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की है, को व्हाट्सएप पर एक धमकी आमेज पैगाम मौसूल हुआ है जिसमें संगीन नताइज की धमकी दी गई है। पुलिस ने इस वाक़े की तस्दीक की है और तहक़ीक़ात का आगाज कर दिया है। पुनिया ने सोनीपत के बहालगढ़ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस अहदेदार के मुताबिक पुनिया की शिकायत के बाद तहक़ीक़ात शुरू कर दी गई है। बहालगढ़ पुलिस स्टेशन के SHO मदन सिंह ने कहा है कि धमकी आमेज पैगाम में पुनिया को कांग्रेस से इस्तीफा देने या संगीन नताइज का सामना करने के लिए तैयार रहने की धमकी दी गई है। ये मामला फिलहाल ज़ेरे तहकीक है। यह वाक़या उस वक्त सामने आया जब बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट ने जुम्मा को कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की, जिससे सियासी मैदान में उनकी नई शमूलियत ने काफ़ी तवज्जो हासिल की है। बहालगढ़ में शिकायत दी थी तो उसको किसी बार के नंबर से धमकी भरा मैसेज प्राप्त हुआ है, उसकी शिकायत ले ली है जिस पर पुलिस की कार्रवाई जारी। सर, क्या शिकायत दी गई है बजरंग द्वारा, बता सकते हैं? किसी अननोन आदमी ने धमकी दी है, अब ये जांच का विषय है, इस पर जांच जारी। आखिर में हेडलाइंस फिर। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का सहाफ़ियों पर इल्जाम, कुछ सहाफ़ी सियासी कारकुनों के तौर पर करते हैं काम। राहुल गांधी का अमेरिका दौरा, टेक्सास में हिंदुस्तान की सियासत और भारत जोड़ों पर तबादला ख्याल। महबूबा मुफ्ती की इंतखाबी मुहिम में बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर कड़ी तनकीद, अवामी रद्द अमल का दावा। 1 TV उर्दू खबरनामा यहीं पर इख्तिताम पसीद हुआ। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी कल मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।